So today we will discuss combination of register or grouping of register. So combination of register or grouping of register. That is our topic. स्क्रीन को कर देना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर दे आर ग्रुपिंग ऑफ register. This is our topic today. Let's discuss it. Clear? So there are two types of combination. Series combination, and parallel combination. Clear? So we'll study one by one. So first one is the series combination. Series combination. So in series combination, current through all registers will be same, but potential drop across all registers will be different. Keep this in mind. So when there are two registers and same amount of current flowing through the register, they are in series and potential will different. Potential drop across the two registers will be different. So consider consider example. This is your circuit. So let us consider three registers. This resistor R1, this resistor R2, this resistor R3. So I current is flowing. So I इससे भी जाएगा, I इससे भी जाएगा. But potential drop across this resistor. Let us say V1 and potential across this will be V2. Potential drop across this will be V3. So they will be different. So actually, what do you mean by V1, V2 and V3? What do you mean by this? मतलब actual क्या है इसका? Here so we'll see पहले इस को इस सेक्शन में बताऊंगा मैं. तो क्या होगा बाबू? करेक्ट तो पहले चीज है. पहले हमको प्रूव करना है कि how can you tell that in series combination same amount of current is flowing through all registers? How can you tell that same amount of current is flowing through all registers? How? Here and also how can you tell that your potential drop across this resistor will be different? So we will discuss this how. Then we will apply the concept. Clear? So पहले ये जानना चाहिए कि how you can tell that or why you are saying that your current flowing through all registers in series condition is same and potential drop across all register is different. So we have to explain this. Clear? So इसको लिखो फिर एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन का नाम सही है. R1, R2, R3. तो पहला बाबू मैंने बोला सेम अमाउंट ऑफ मान लो यहाँ से करंट आई जाएगा तो यहाँ से करंट आई जाएगा तो इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी. पहले से हुआ आई R1, R2 एंड R3 सबके थ्रू करंट जाएगा वो आई होगा. तो वैसे मालूंगा यू नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नजर के नॉट रजिस्टर्ड, चार्ज के नजर के नॉट रजिस्टर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज के नजर के neither be created nor be destroyed in an
isolated system. Charge electric in a system. So what? Clear? So charge can neither get nor be destroyed in an isolated system. So what? मान लो कि यहाँ से कुछ q amount of charge दिया है, t इक्वल टू 5 सेकेंड में q इक्वल टू 5 कूलम चार्ज मान लो इस रजिस्टर से गया, तो यहाँ से 5 कूलम चार्ज यहाँ गया जितने टाइम, तो उतना ही टाइम ये चार्ज आगे फॉरवर्ड करेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि रजिस्टर है तो 5 कूलम आया तो 2 कूलम अपने पास रख लिया और 4 कूलम किसी 3 कूलम किसी और को दे दिया। इससे मान लो 5 कूलम चार्ज इसको मिला, ऐसा थोड़ी है कि 2 कूलम रख लेगा 3 कूलम अगले को देगा, नहीं ना, क्योंकि इट कांट क्रिएट चार्ज और डिस्ट्रॉय चार्ज है। जितना चार्ज इसको इधर से मिलेगा उतना ही चार्ज ये आगे को फॉरवर्ड करेगा। यानी इसी से मान लो t इक्वल 5 सेकंड में 5 कूलम चार्ज गया, इससे भी कितना चार्ज जाएगा, उतना ही चार्ज है, उससे भी उतना ही जाएगा। यानी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द ऑल रजिस्टर ना, क्योंकि चार्ज के नॉर्मल के नॉर भी डिस्टॉर्ट, ये रजिस्टर नहीं चार्ज क्रिएट करेगा ना डिस्टॉर्ट। इवन बैटरी चार्ज दे रहा है 5 कूलम, इसको घूम के फिर 5 कूलम वापस चाहिए। क्लियर है? तो ये 5 कूलम दिया घूम के नहीं 2 कूलम चार्ज खर्च हो गया, इसको 3 कूलम मिल रहा है, ऐसा नहीं ना। इफ प्लस चार्ज इज गिविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज माइनस प्लेट शुड गेट 5 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर? यहाँ इसका मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर, दैट्स व्हाई करंट थ्रू द ऑल रजिस्टर विल बी सेम बिकॉज़ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? इसमें चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। क्लियर? तो सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is flowing the amount of charge is flowing through all registers in a given time interval. So current will be sent through all registers through अगर क्रिएट करता चार्ज या चार्ज को डिस्ट्रॉय करता, देन current flow of current through all registers will be different, means but your resistance is neither creating the charge and nor destroying the charge. So same amount of charge is flowing through all registers, so current through all registers will be same. Now think about potential. Current is flowing through, consider this resistor R1. This resistor R1. So current is flowing through this one in this direction, means this is point A and this is point B. This one the potential at V will be greater than potential at V, and you know V is equal to, मान लो this is V1, potential drop V1, so V1 is equal to VA minus of VB. Clear? And this must be equal to some ओम सालाना IR1। ऐसे समझो कि रजिस्टर के क्रॉस में क्या लगा दिया, IR1 है बाबू ना, तो इसके क्रॉस में बैटरी लगा है जिसका पोटेंशियल कितना है V1। आ रहे हो समझ? यानी कि यहाँ का हाई पोटेंशियल, यहाँ का लो पोटेंशियल, तो बैटरी ही है ना यार, ये बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ हाई पोटेंशियल यहाँ लो पोटेंशियल। क्लियर? सो V1 इक्वल क्या होगा, VA माइनस VB। मान लो ये पॉइंट A है, पॉइंट B, यहाँ पॉइंट C मान लो, यहाँ पॉइंट D मान लो, तो ये क्या है, 2 पॉइंट हो गया ना A और B। सो चार्ज करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, मींस A is at high potential and B is at low potential. So VA minus VB is some potential difference V1 and that is equal to IR1. Clear? Similarly, current is also flowing through R2 na. So this is point B and this is point C. Again current is flowing in this direction. So current is flowing from B to C na. Means potential at B is greater than potential at C. इसका मतलब क्या होगा कि VB minus VC is equal to from B2 ना, इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि हमने, इसका मतलब ये कि हमने R2 के पास एक बैटरी लगा दिया है, इमेजिनरी बैटरी, इसका पोटेंशियल कितना है बाबू, V2 के इक्वल है। सिमिलरली 3, so this is B and this is C, so current is flowing in this direction, so VB is greater than VC, so VB minus of VC is equal to V3 and which is equal to IR3। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी क्या होगा IR2। कोई दिक्कत क्या?
कहाँ लास्ट वाला पॉइंट सी और डी है ना। सी और डी ना BC वाला हो गया उधर। हाँ तो ठीक है, C और ये D होगा, सॉरी। क्लियर क्लियर। अब ओम्स लॉ अप्लाई करो, ओम्स लॉ क्लियर। इसका मतलब कि हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, V को पोटेंशियल अप्लाई किया, लेकिन डिवाइड वाला पोटेंशियल क्या है, V1 V2 एंड V3। यहाँ सर्किट में आते हैं, समझो चीजों को दम तोड़ बोलो कि यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2, यहाँ V3, ये R1 है, ये R2 है बाबू, ये R2। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज V3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन इज V2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस V3। कोई दिक्कत? सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ऐसे नहीं आ रहा है ये कहाँ से आया, तो ये भी अप्लाई कर लो। होगा क्या कि मान लो ये पॉइंट A, मान लो ये पॉइंट B, ये C, ये पॉइंट D। कोई दिक्कत? तो होगा क्या बाबू, ये दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है फिगर ना, ये और फिगर कहीं और बनाओ, इसको लिखो एक बार, लिखो लिखो एक बार कराता हूँ। I पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, दिस इज V। ऑब्वियस क्या होगा कि V इक्वल टू VA माइनस ऑफ VD होगा कि नहीं होगा? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा ना। तो देखो अब ऐसा मैं कर सकता हूँ कि VA माइनस ऑफ VB प्लस VB माइनस ऑफ VC प्लस VC माइनस VD, ये तो कोई दिक्कत है, इनका इफेक्ट जीरो होगा, इनका इफेक्ट कोई दिक्कत? अरे कट जाएंगे जीरो, ये कट जाएंगे, बाद में रिजल्ट यही आ जाएगा ना, ये माइनस बी हुई, कोई दिक्कत? तो ऐसे लिखे VA माइनस ऑफ VB प्लस VB माइनस ऑफ VC प्लस VC माइनस ऑफ VD। इसको साथ लो, इसको साथ लो, इसको साथ लो, तो ये क्या है, VA माइनस VB पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 दैट इज V1, पोटेंशियल ड्रॉप का V1 प्लस दिस इज V1, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 दैट इज V2। क्या रखा है ना पहले, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V3, R3 इज V3, तो ये V2, ये V3 करा रखा है ये पहले। तो ये ओम्स लॉ से ही आता है बाबू, सिंपल बेसिक है, नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। कोई दिक्कत? अब अप्लाई कर देंगे यार, ये भी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि there is a battery having potential V, and now we are connecting three resistor R1, R2 and R3 and I amount of current flow, यानी कि हमने क्या किया कि V बैटरी लगा और हमको I करंट मिला, और रजिस्टर कितने थोड़ा वो 3 रजिस्टर, तो ये कब मिला, जब we have 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, we have to replace these 3 रजिस्टर, we have to replace these 3 रजिस्टर with a single रजिस्टर, और उस सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लो R इक्विवेलेंट है, so you have to replace this resistor with a single resistor such that if you are connecting this resistor with this battery you are getting I amount of current, यानी कि इसके बदले, तीनों के बदले ऐसा रजिस्टर लगाओ जिसका रेजिस्टेंस हम R इक्विवेलेंट हो, उसको अगर यही सेम पोटेंशियल का बैटरी ऐड करते हो तो तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो यहाँ पे इसके लिए ओम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल टू I R इक्वल टू V इक्वल टू I, और R के बदले R इक्विवेलेंट लिखेंगे ना इसके चक्कर में, तो कैलकुलेट करो तो क्या होगा, ये I R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 को निकाल लिखेगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, इसके क्रॉस ओम्स लॉ लगाओ, इसके क्रॉस इसके क्रॉस, अभी हमने यहाँ भी ओम्स लॉ लगा दिया, कोई दिक्कत? हो गया क्या, ये होगा बाबू, सिंप्लीफाई करोगे तो I से I कट जाएगा बाबू चारों तरफ, बच गया क्या, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो ये हो गया बाबू, है ना, तो करो।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। So in parallel combination, potential drop across all resistors in the same will be same, but current divides. Current divides. So this is your ये हो गया R1, R2, R3 और V हो गया क्या। तो मान लो यहाँ से करंट आई है, या मान लो Q चार्ज गया है यहाँ से, तो क्या होगा, Q चार्ज आएगा तो Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इज चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट रजिस्टर, मींस करंट थ्रू ऑल रजिस्टर विल बी डिफरेंट ना, होगा कि नहीं होगा। एंड ऑल्सो बट एंड पॉइंट पर मान लो कि दोनों का सबका एंड क्या यही है ना, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल, मान लो यहाँ का पोटेंशियल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो बी इज ग्रेटर देन बी बी, क्लियर क्लियर। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इसके लिए भी क्या होगा, सेम पॉइंट पे सेम एक पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे वायर जा रही है और ये पॉइंट ए है, तो सबके लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उसका भी यही होगा, उसका भी ये सबका, यानी कि एक पॉइंट पे जितने वायर मिलेंगे उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सारे वायर का ही पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत, यानी कि इसका जो ये पोटेंशियल है ए बी मान लो पोटेंशियल, तो इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, यानी कि तीनों वायर कहाँ मिल रहे हैं ए पे, तो जो पोटेंशियल वी ए होगा ये इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। सिमिलरली अगर पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल वी बी है, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही है, इसका भी है। इसका मतलब अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेंशियल वी है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी ही होगा, ये पोटेंशियल वी बी है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा। यहाँ क्या है, वी ए है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी ए ही होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा। इधर पोटेंशियल वी ए, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, और यहाँ भी वी बी। अब देखो इसका ये यानी कि वी ए सब में इधर इक्वल है, इधर वी बी सब में इक्वल है, यानी कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सब क्या होंगे बाबू, इक्वल होंगे। अब करंट डिवाइड होगा, क्योंकि चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट रजिस्टर, चार्ज इज different amount of charge is flowing now through different resistor, different amount of charge is flowing, so current will be different। तो टोटल करंट कितना होगा, मान लो कि Q चार्ज जा रहा है तो 3 पार्ट डिवाइड हो रहा है ना, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो I कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बैटरी का पोटेंशियल V है, इसका मतलब इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा, तो कर लेंगे तो कितना होगा। अब क्या है, रूल क्या है कि इन तीनों के बदले, इन तीनों रजिस्टर के बदले तुमने एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें एक सिंगल रजिस्टर लगाओ, उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर R मान लो, R इक्विवेलेंट, और उसको सेम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो सेम अमाउंट का करंट तुम्हें मिलेगा। क्लियर, तो उसको सॉल्व करो तो होगा क्या बाबू, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब हमें क्या करना है कि इन तीनों के बदले एक ऐसा रजिस्टर लगाना है कि जिससे अगर V वोल्टेज के बैटरी कनेक्ट करोगे तो I अमाउंट ऑफ करंट मिले। तो होगा क्या, I के बाद लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हमने क्या किया कि यहाँ भी हम फ्लो अप्लाई कर दिया, यहाँ भी हम फ्लो, और यहाँ भी सब जगह, यहाँ सब जगह लगाई थी, तो कितना होगा, V से भी कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया। आ रही है उसमें एक बात याद रखना, जैसे कोई वायर है बाबू और ये रजिस्टर है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, फिर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, जैसे यहाँ का पोटेंशियल वी ए है तो यहाँ का भी वी ए होगा, यहाँ का भी वी ए होगा, और यहाँ का भी वी ए होगा। और रजिस्टर के पहले जितने पार्ट्स है
सबका पोटेंशियल सेम होगा और रजिस्टर के बाद जितने पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि यहाँ का पोटेंशियल VV है तो यहाँ का भी VV होगा और यहाँ के क्यों, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इसके तरफ 0 होगा। आर एस जैसे V = IR, ये वायर में होता है कंडक्टर होता है और कंडक्टर का R क्या होता है अप्रॉक्स 0 होता है कि नहीं, अप्रॉक्स 0 होता है, तो V क्या होगा 0, यानी कि कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। इसको तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या होगा हमेशा सेम होगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, कोई दिक्कत। तो ये होगा बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी बैटरी एंड सेल, क्लियर। तो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।